جو کردار آج میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ ہے فلپ، اپوسٹل فلپ یا فلپس رسول. اردو میں فلپس لکھا ہوا ہے، گریک نام ہے، گریک میں یہ فلپوس ہے. تو ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت. دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے بولے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو چنا اور کچھ کا ذکر ہے کہ کچھ کو اس نے نام لے کے بلایا تھا میرے پیچھے ہو لے. ایسے ہی فلپس ہے جس کو یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے. خصوصاً یسوع مسیح گلیل میں جانا چاہتا تھا اس مقصد کے لیے، ایک بندے کی خاطر، فلپس کو چننے کے لیے، شاگرد بنانے کے لیے. آپ یہی دیکھ رہے ہیں یسوع نے گلیل میں جانا چاہا. He wanted to go. وہ اس کی خواہش تھی کے بجائے، کیونکہ وہاں اس نے ایک خاص کام کرنا تھا، ایک بندے کو شاگرد بنانا تھا. اب یہ فلپس جو ہے یہ کس شہر کا رہنے والا تھا؟ یہ بیت سیدا کا رہنے والا تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ پترس اور اندریاس دو یسوع کے شاگرد تھے، سگے بھائی، وہ بھی اسی شہر کے تھے. ہو سکتا ہے پترس اور اندریاس نے ان کو سمجھایا ہو کہ یار دیکھیں ہم یسوع کے شاگرد بن گئے ہیں، اس کو تیار کیا ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے خصوصاً اس طرف جانا چاہا. جا کے فلپس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. لگتا ہے it's not written in the Bible، لگتا ہے کہ جو پترس اور اندریاس ہے انہوں نے اس کو کافی حد تک تیار کر لیا ہوگا. پھر یہ شخص جو ہے یہودی تھا، لیکن آپ کہیں گے نام تو اس کا یونانی ہے، عبرانی نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے انگلش نام ہے؟ بہت سے لوگ ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈومینیٹ پاور کر رہی ہو اس کے نام لوگ لے لیتے ہیں. جیسے کہ یونانی اس وقت روم پر تھے، تو یہودی ہے یہ شاگرد، نام اس کا گریک ہے. اور ہمیں کیسے پتا یہودی ہے؟ کیونکہ یسوع کے 12 کے 12 شاگرد یہودی تھے، اس سے پتا ہے. اور اب لفظ فلپس جو ہے گریک ورڈ، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے لور آف ہارسز، گھوڑوں سے محبت کرنے والا. نام ہے، ماں باپ کو پسند ہوگا انہوں نے رکھ لیا. اتنا فیمس نام ہے کہ اسکندر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، اس کے باپ کا نام بھی فلپس تھا. اور یہ جو فلپس ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو یسوع کا شاگرد ہے، بائبل میں اس کے باپ کے نام کا معلوم نہیں ہے، اس کی ماں کے نام کا ذکر نہیں ہے، اس کے قبیلے کا نہیں پتا، لیکن یہودی ہے. اور یاد رہے کہ یہ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ہے. اب شاگرد بننے کے بعد اس نے پہلا کام کیا کیا؟ غور سے سنیں. یسوع نے سے کہا میرے پیچھے ہو لے. فوری تعلیم کی، اوبیڈینٹ ہوا، یسوع کے پیچھے ہو لیا. پھر شاگرد بننے کے بعد پہلا کام اس نے کیا کیا؟ آئیے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 45ویں اور 46ویں 2 آیات ہم پڑھیں گے. فلپس کا پہلا کام شاگرد بننے کے بعد. فلپس نے نتنیل سے مل کر اسے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے تورات میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا. وہ یسوع یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. نتنیل نے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے. اب سنیے، پہلا کام اس نے یہ کیا، نتنیل سے ملا. وہ بھی یسوع کا شاگرد، 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے. نتنیل سے ملا. نتنیل سے اس نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے کہ ناصرت کا رہنے والا ایک شخص جو اسے پتا تھا یوسف کا بیٹا، تو یوسف کے بیٹا یسوع ناصری جو ہے وہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے اپنی شریعت میں لکھا ہے، نبیوں نے کہا ہے ایک آئے گا وہ آ چکا ہے، مجھے مل چکا ہے، میں اس کا شاگرد ہوں. اس
उसने नतनेल से कहा, और नतनेल ने जब नाम सुना, नासरत का रहने वाला, बड़ी हकार से कहा, नासरत, चलो यरूशलेम होता, ये बैतलहम होता, तब तो और बात ही, नासरत, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, चल के देख ले। आपसे कहना चाहता हूं, जब आप किसी को यीशु के पास लेके आना चाहें और उससे कहेंगे ऐ भाई या ऐ बहन, हम तुझे यीशु के पास आने की दावत देते हैं, और वो कोई ऐसे सवाल करे जिसके जवाब आपको ना आते हो, तो उसे कहे भाई चल के देख ले। हालेलुया, बोले हालेलुया। नासरत से एक बड़ी शख्सियत पैदा हुई, गुमनाम कौम, छोटा सा कौम, जिसका जो किसी गिनती में शामिल नहीं था। आज तो नासरत इतना मशहूर है कि गुड न्यूज़ चर्च जो है नासरत रोड के ऊपर कायम है। हालेलुया। नासरत इतना मशहूर हो गया किस वजह से? यीशु नासरी की वजह से। बोले प्रेज़ द लॉर्ड, कहिए हालेलुया। मुझे आवाज आनी चाहिए, कहिए हालेलुया। तो इस तरह से उसने यीशु मसीह की खबर दी। अब ना सिर्फ ये, एक और वाकया, ये बंदा जिसका बहुत कम जिक्र है, हम पढ़ते हैं कि यहूदा के बारे में, याकूब के बारे में, पतरस के बारे में, इंद्रियास के बारे में, यहूदा के बारे में, लेकिन इसके बारे में कम मालूमात मिलती है। जितनी मिलती है नहायत वजह से सुने। फिर ईद फसा का मौका था, बहुत से यूनानी लोग वहां थे, और ये यूनानी तो नहीं था, लेकिन इसके नाम से फायदा उठाता था। लोग इसको फिल्म देख के समझते थे यूनानी है, और यूनानी लोग इसकी तरफ माइल होते थे और क्वेश्चन करते थे। फिर जब वो क्वेश्चन करते थे तो वो कहते थे कि हमें यीशु के बारे में बताएं। यूना की जी 12वां बाब 21वीं 22वीं आई, उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदाई गलील का था, आकर उससे दरखास्त की, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। लगता है इस बंदे ने उनको तालीम दे दी थी, बता दिया था कि यीशु है कोई, वो जो नासरत में पैदा हुआ, मैं उसका शागिर्द हूं। कोई है यीशु जो मुर्दों को जिंदा करता है यीशु जो गोरियों को पाक साफ करता है, कोई है यीशु जो अंधों को पाक करता है, दिलाई देता है, कोई है यीशु जो सारी कायनात पे इख्तियार रखता है, जो कादिर मुतलक है। बता दिया हुआ था। सवाल कर रहे हैं, कहते हैं यीशु से मुलाकात को करवा दे। उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदाई गलील का था, आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप यीशु की तालीम ऐसे दें कि लोग आपसे सवाल करें कि यार यीशु हमें भी दिखाओ कहां है, तो आप दिखा सकते हैं कि यीशु मेरे अंदर है। आपकी जिंदगी को लेके उनको चर्च लेके आए, चर्च में आए, खुदा का कलाम सुने, यीशु को जान जाएंगे। तो फिलिप्पस ने आकर यहां एक भेद की बात है, सुनिए। जब यूनानियों ने कहा जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, तो फिलिप्पस खुद उनको यीशु के पास नहीं लाया। उसने जाकर इंद्रियास से बात की, और मैंने आपको बताया पतरस और इंद्रियास दोनों उसके गांव के थे, यीशु के शागिर्द, दोनों सगे भाई थे, पतरस और इंद्रियास। तो उसने जाके इंद्रियास से कहा कि यार वो फलां यूनानी लोग हैं और वो मुझसे कहते हैं यीशु से मिलना चाहते हैं, तो क्या करें? फिर दोनों ने जाके यीशु से बात की कि यीशु यूनानी तुमसे मिलना चाहते हैं। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी को यीशु के पास लाना चाहते हैं और आप ज्यादा वाकफियत नहीं रखते बाइबल के बारे में, तो फिर किसी से मदद लें जो आपसे थोड़ा बेहतर काम को समझता है। दावत जरूर दें, यीशु के कबूल करने की, निजात की दावत दें, तौबा की दावत दें, यीशु के दुखों के बारे में बताएं। और जब वो मजीद सवाल करें जिसकी बाबत ना जानते हो, तो आपने किसी सीनियर से मिले। और इंद्रियास सीनियर था, वो पहले मसीह के पास आया था, किसी सीनियर से मिले, चर्च में किसी और से गए कि यार मैं फलां शख्स से बातचीत कर रहा हूं, वो ये आगे से सवाल करता है, क्या करूं? उसने आगे इंद्रियास से बात की, इंद्रियास और दोनों मिलकर फिर यीशु के पास गए। बोले हालेलुया। आप क्या सीख रहे हैं? इससे बहुत कुछ आपने सीखा है। पहली बात, हमें लोगों को यीशु के पास लाना है। दूसरी बात, अगर इल्मियत में कमी है, ज्यादा वाकफियत नहीं है, निजात की तो तालीम दे सकते हैं। अगर मसीह सवाल हो तो किसी को मददगार बनाएं, किसी सीनियर से बात करें और लोगों को मसीह के पास लाएं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया।
आप सब यीशु मसीह के एजेंसी हैं, we are ambassador of God। जैसे किसी मुल्क का कोई सफीर होता है, हम आसमान के सफीर हैं। खुदा यीशु मसीह ने हमें जमीन पर सफीर बनाया है ताकि यीशु की नुमाइंदगी करें। दूसरा ग्रंथियों देखिए 5वां बाब 20वीं आयत, बस हम मसीह के एजेंसी हैं, so we are the ambassador of Jesus Christ। हम मसीह के एजेंसी हैं, गोया मसीह हमारे वसीले से, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तिमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेरे मुलाकात कर दो। सुनिए, पौलुस कहता है हम मसीह के एजेंसी हैं, हम खुदा के बिहाफ पर खुदा के वसीले से इल्तिमास करते हैं कि यीशु को कबूल कर लो, तौबा कर लो, निजात पा लो, पानी का बपतिस्मा ले लो, जिंदगी पाक बना लो। हम लोगों से इल्तिजा करते हैं और आगे लिखा है हम मिन्नत करते हैं कि मसीह से मेल मिलाप कर दो। और फिलिप्पुस ऐसा ही करता था। हालेलुया। आज जो भी मैं फिलिप्पुस का वाक्य बताऊंगा उसको आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। इशारे आज़म भी यही है, बस तुम जाकर सब खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो, बस जाकर तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करो, दुनिया को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे फिलिप्पुस के नाम से बपतिस्मा दो। फिलिप्पुस ये काम करता था, लोगों को मसीह के पास लाता था। आपको और मुझे भी चाहिए इशारे आज़म की तामील भी करे, तकमील भी करे और लोगों को मसीह के पास लाए। एक और वाक्य बड़ा दिलचस्प है, आगे रेडी? आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? जो तैयार हैं सुनने के लिए हाथ खड़ा करें, और वो भी हाथ खड़ा करें जिनको मेरी उर्दू की, मेरी ज़बान की, मेरे अंदाज़े बयान की समझ नहीं आ रही, वो भी हाथ खड़ा करें। जिसको समझ नहीं आ रही वो भी करे। सबको आ रही है तो यीशु मसीह के जवाब के लिए तालियां। यीशु मसीह के सवाल जवाब हुए फिलिप्पुस से। हजारों की भीड़ यीशु का कलाम सुनने के लिए आ रही थी, हजारों में, कहा जाता है कम से कम 15,000 लोग। 5,000 तो सिर्फ मर्द थे, औरतें थी, बच्चे थे, तो कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा लोग थे मसीह का कलाम सुनने के लिए उसके पीछे पीछे। यीशु मसीह ने जरा फिलिप्पुस को टोया, समझ लो, सवाल किया। यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस याद बता, इतने लोग ये भूखे प्यासे आ रहे हैं, इनको खाना कैसे मिल सकता है? आपके ख्याल में फिलिप्पुस को क्या जवाब देना चाहिए था? बोलिए, क्या जवाब देना चाहिए आपके ख्याल में? क्या था आपका? कोई ख्याल नहीं। यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस यार इतने भूखे लोग आए हैं, इनको क्या करें, कहां से ही खाएंगे, इनके लिए खाने का इंतजाम कहां से करें? उसको क्या जवाब देना चाहिए था? यीशु तू मौजज़ा कर सकता है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही यहोवा है, तू ही कर सकता है, ये कहना चाहिए था। लेकिन उसने सवाल पता क्या किया? यीशु के सवाल का जवाब आइए दोनों ओर से सुनो। यूहन्ना 6वां बाब 5वीं छठी आया। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास एक बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लाए? हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लाए? मगर उसने आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूंगा। यीशु को तो पता था कि मैंने क्या करना है। तो आइए पढ़ते हैं। आजमाने के लिए सवाल किया था। ये सवाल जो है यीशु इसका जवाब जानता था, क्योंकि यीशु जो है हमें मुश्किलात है वो जवाब दे सकता है। और फिलिप्पुस का जवाब सुनो। आगे रेडी? कितने लोग हैं जो फिलिप्पुस का जवाब सुनना चाहते हैं? फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी, कि हम हर एक को, कि हम से हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। शायद उसकी जेब में 200 दिनार हो, आजकल की को 5,000 रुपया, या वैसे उसने आइडिया लगाया हो कि खुदावन 200 दिनार की भी अगर रोटियां ले रहे हैं, इनको थोड़ी थोड़ी भी नहीं मिलेगी। मतलब उसने कहा कि नामुमकिन।
उसने क्या कहा भाई? हेलो भाई साहब, फिलिप्पुस ने क्या कहा? नामुमकिन है, नहीं हो सकता। 200 दिनार की रोटियां भी आ लेना, तो उसको सोचता हो कि शागिर्दों के सारे जेबों में से पैसे निकाल के गिने तब भी 200 नहीं बनेगा, और अगर बन भी जाए तो 200 की रोटियां इनके लिए काफी नहीं होंगी 200 दिनार की। तो ऐसा बहुत दफा हम भी सोचते हैं, हम फैक्ट्स को देखते हैं, जो कुछ नजर आता है उसको देखते हैं। उसको भीड़ नजर आ रही है, बड़ी भीड़ है, उसको नजर आ रहा है रात का टाइम है, तनूर बंद है, जंगल बियाबान है, शहर यहां से दूर है, शहर में चले भी गए तो जाते जाते देर हो जाएगी और तनूर बंद होंगे, रोटियां मिलेगी नहीं। उसको हालात नजर आ रहे हैं। और जब कभी आप पे ऐसे हालात आते हैं तो बहुत से फैक्ट्स होते हैं जो हकीकत होते हैं। ये हकीकत है कि वो कह रहे कि जी 200 दिनार भी काफी नहीं है, शहर दूर है, जंगल बियाबान है, शाम का वक्त है, हजारों की भीड़ है, तनूर वगैरह खुले नहीं होंगे, शहर कैसे जाएंगे? ये सारी बातें सच्ची थी, लेकिन वो नहीं जानता था यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आप हालात में मत देखें, फैक्ट्स को मत देखें, बल्कि कलाम को देखें, जिसमें यीशु के नामों में से एक खूबसूरत नाम है। क्या नाम है? यहोवा यरी। कहिए यहोवा यरी। मैं कहूँगा यहोवा यरी, नहीं आपके यहोवा यरी तो मैं कुछ बोलूंगा, कटे बोले यहोवा यरी, डोंट वरी। दोबारा कहिए डोंट वरी। जब यहोवा यरी है तो मैं सब किस बात का, परेशानी किस बात की? जब यीशु साथ है तो फैक्ट्स जो भी हो, हालात जो भी हो, सच्चे हालात हैं, सच्चे वाकयात हैं, सब कुछ हो सकता है। अभी पिछले बार आपने सुना कि केरल के बारे में, काले हालात बिल्कुल वही थे कि खुदा ने कहा जाओ, जाकर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करो, और जासूस भेजे। जासूसों ने आगे रिपोर्ट दी कि वहां के लोग ऐसे हैं जब उनके सामने टिड्डे हैं, वो जाइंट हैं, वो देवकामत हैं, और वहां के लोग जो है वो हमें खा जाएंगे कच्चा, हम उनको पता नहीं कर सकते। दो लोग जो यशुआ और केरल में, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ऐसे ही हैं। 10 ने कहा, हालात को देखा होगा, हम उन्हें पता नहीं कर सकते। 2 ने हालात भी देखे कि वो कदावर हैं, बनी अदाक भी उनमें, जब्बार भी उनमें, देवकामत है, जाति चुड़ियत की तरह के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा चलो हम फतह कर लेंगे, निकलो हम फतह कर लेंगे, फतह हमारे पास है, यहोवा हमारे साथ है, जंग करने वाला यहोवा साहिबे जंग हमारे साथ है, चलो हम फतह कर लेंगे। और उन्होंने फतह कर दिया। बोले हालेलुया। तो आज क्या सीखा इससे? हालात पे ना देखें, फैक्ट को ना देखें, ट्रूथ को देखें। और फिलिप्पुस ने भी ऐसे ही सोचा, हालात में देखा और कहा कि यीशु मुश्किल है। फिर झील में तूफान आ गया, यीशु साथ है, 12 शागिर्द झील में कश्ती में थे और कश्ती में डगमगाने लगी क्योंकि बड़ा जबरदस्त तूफान आ गया। यीशु झील में है और शागिर्द डूबने लगे, परेशान हो गए कि कश्ती डूब रही है, भूले हुए कि यीशु भी साथ है, और वो कह रहे हम मर जाएंगे। शायद अपना सामान उठा के झील में फेंकते हो, किसी तरीके से कश्ती का मसल काम हो जाए। वो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है सामान उतारा करते हैं, तो वो सामान उतार रहे होंगे, फेंक रहे होंगे, जान तो बचे, डूबने को दिन का सहारा कुछ तो हो, लेकिन भूल गए थे कि यीशु साथ है। फिर जब ख्याल आया तो कह रहे ऐ यीशु हम मरे चले जा रहे हैं, हम डूब रहे हैं, उठ कर। और यीशु ने तूफान को थमा दिया, उठ के कहा थम जा, तूफान थम गया। उसने कहा रुक जा, आंधियां रुक गई। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। हालात पे ना जाए, फैक्ट्स पे ना जाए, ट्रूथ पे जाए, सच्चाई पे जाए। हालेलुया। पतरस का भी यही हुआ था। पतरस को यीशु ने कहा मैं पानी में चल रहा हूं, तू भी चल। आ गया, चलने लगा। फिर हालात को देखा, ओए इतना गहरा पानी। तो जब हालात को देखा डर गया कि मैं तो नामुमकिन काम कर रहा हूं, नामुमकिन वो नहीं कर रहा था, यीशु से करवा रहा था। डर गया, हालात को देख के मत डरे, पतरस की तरह हाथ बढ़ाए, यीशु अपना हाथ पकड़ के आपको बचा लिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया।
हालेलुया। आप कहेंगे कलाम को आप सुना रहे हैं फिलिप्पुस के बारे में, सुनिए फिलिप्पुस के बारे में बाइबल में बहुत कम वाक्य मौजूद है, लिहाजा जो है उन्हीं से हम सीखेंगे। फिर एक और बात, मैं अभी इस वक्त बात क्या कर रहा हूं, फिलिप्पुस की ज़हनियत, क्या ज़हनियत है? हालात ऐसे हैं, लोग भूखे वापस जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब बहुत से सुनिए, बहुत से लोग दया यकीन देना चाहते हैं, उनका दिल चाहता है कि वो दया यकीन दे, लेकिन फैक्ट्स क्या है? मकान का किराया बहुत ज्यादा है, बिल बहुत आ गए हैं, बच्चों की फीसें हैं, शादी फलां की सर पे आ गई है, फलां जगह नाम की शर्त देना है, फलां ये है, फलां वो है, और वो बातें सच्ची हैं जो उनके जेब में आती हैं। दया की देना चाहते हैं, उनके पास है, उन्हें पता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे, लेकिन हालात ऐसे हैं उनको मजबूर करते हैं कि वो ना दें। ऐसी सूरत में क्या करेंगे? आप बताइए, कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं? हालात पर नहीं देखें, फैक्ट्स को नहीं देखें। हेलो, सुन रहे हैं? कितने जो सुन रहे हैं? हालात को मत देखें, वो जो हजारों को खिला सकता है आपको नहीं खिला सकता है। हालात में मत देखेंगे, आपके पास तो है ही नहीं। अगर आपके पास 40,000 रुपया मंथली आता है, 4,000 आपकी दायित्व है, उसके बाद 36,000 बचता है, और 36,000 का टोटल करते हैं और वो कहते हैं जी बचते ही नहीं, उसके बाद तुम्हारे पास है ही नहीं, लिहाजा वो 4,000 खुदा का भी खा जाते हैं। हालात ऐसे उनको मजबूर कर देते हैं। याद रखें, हालात में ना जाए, याद रखें यहोवा यही है। हालेलुया। इत्तेकाद करना सीखें, ट्रस्ट करें। दया यकीन हमें ट्रस्ट करना सिखाती है। एक हवाला पढ़ेंगे जल्दी से, मलाकी की किताब 30वां बाब और उसकी 10वीं आयत। हम फिलिप्पुस के बारे में सीखेंगे, पुराना नहीं, आगे जाके पूरी दया यकीन से खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम्हारा आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं या नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके रखने की जगह न रहे। कहते देख तो देखो, आसमान के तो देखो। आपको खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावन आपने खुदा की आजमाइश न कर, लेकिन दयालुता के बारे में लिखा है आजमाइश कर। देख तो सही, आसमान के तो देख, मैं तेरे दरीचे भर दूंगा, आसमान के दरीचे खोल दूंगा और तेरे पास रखने की जगह न होगी। बात यह है, सेटिस्फैक्शन होगी। आप फिलिप्पुस की तरह हालात में ना देखें, यीशु को देखें, यीशु की तरफ देखें। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। दायकी पे हम कलाम काफी देर से नहीं सुना रहे, और मेरा ये दायकी पे पैगाम नहीं है, ये तो फिलिप्पुस के बारे में बातों में बात चली तो हमने कहा चले एक कलाम का ये हिस्सा भी आपको दे दें। अगर आप कामिल काद हैं, ये सोचते हैं कि मैं पूरी दायकी नहीं दूंगा, आपकी 40,000 तनख्वाह है, आपने 1,000 मुकर्रर कर दिया है कि 1,000 रुपया महीने का देना है, तो आप सोचें पूरी दायकी खुदा के घर में लाएं, हालात को ना सोचें, खुदा उसको बढ़ा देगा। बोले हालेलुया। और यहाँ लिखा है ना कि तुम्हारे पास जगाना नहीं, इसका मतलब कि मुकम्मल सेटिस्फैक्शन। यीशु सब कुछ कर सकता है। मत्ती की इंजील के 19 बाब की 26 आयत में लिखा है, यीशु उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। अब हमेशा खुदावन को अव्वल दर्जा दें और फिर खुदा सब कुछ कर सकता है। आइए मुझे बताइए, आज हम कौन से शागिर्द की बाबत सीख रहे हैं? ऊंची आवाज में, फिलिप्पुस या फिलिप? तो फिलिप्पुस के बारे में एक दिलचस्प बात, बहुत दिलचस्प, सुनना चाहते हैं? सुनिए। 3 साल तकरीबन हो गए यीशु के साथ शागिर्दों को, एंड हो गया यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का। इसके बाद यीशु में मसलूब हो गए। 3 साल से फिलिप्पुस यीशु के साथ है, मौज से देख रहा है, उसने गलील की झील का मौजा देखा है, उसे 5 साल को खाना खिलाने का मौजा अपनी आंखों से देखा है, उसने देखा है कि हम खुदा हवा और पानी को यीशु मसीह थमा देता है। सारा कुछ देखा है उसने, मुर्दों का जिंदा होना देखा है, उसने याईर की बेटी को जिंदा करते हुए यीशु को देखा। इतना कुछ देखने के बाद वो एक सवाल करता है। आइए देखिए जरा स्लाइड। यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 8वीं आयत में उसने एक सवाल किया।
फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, हमें यही काफी है। सुनिए क्या सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। कहता जो जिस बाप की तू बात करता है, तू कहता है जब दुआ करो तो वो है हमारे बाप, वो बाप हमें दिखा। फिलिप्पस का सवाल क्या था? कोई दोहराना चाहेगा? क्या भाई, फिलिप्पस का सवाल क्या था? हमें बाप दिखा जिसके बारे में तू कहता है कि दुआ करो तो वो है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, वो बाप हमें दिखा। तो यीशु का जवाब बड़ा खूबसूरत था। सुनिए 14वां बात है, यीशु ने कहा, ऐ फिलिप्पस, इतनी मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कहता है कि बाप को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और कुछ और आयत में लिखा है, मैं और बाप एक ही है, मैं बाप से निकला हूं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह खुदावंद भी है, यीशु मसीह भी है, और यीशु मसीह निजात देता भी है, यीशु मसीह शाफी भी है, और यीशु मसीह खुदा भी है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वो खुदा था, मुजस्सम होकर आया और इंसान बनकर इंसानों के मुशाबे हो गया। और यूहन्ना की जीवन में पढ़ते हैं, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो कह रहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? 3 साल से मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। आइए प्रकाशियों में से एक आयत पढ़ते हैं, पहला बाब 8वीं आयत। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप सवाल दें जी। नाम रावलपिंडी से सोनिया। देर से आती है ना, साल बाद नाम भूल जाता है। सोनिया आप जवाब दें, मुझे बताएं कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आने वाला है? ऊंची आवाज में गए। हाँ जी, कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? आइए देखें, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला। इसका मतलब है यीशु मसीह पहले भी था, अब भी है और आने वाला है। और आगे लिखा है, यदि कादरे मुत्तकी फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये कादरे मुत्तकी का मतलब है वन हु कैन डू एवरीथिंग, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, ऑलमाइटी है जो। बोले हालेलुया। और यहोवा विटनेस के लोग जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते, उनको यह आयत जरूर सुनाए। और फिर अब हम फिलिप्पस की जिंदगी के एंड में जा रहे हैं। यीशु मसीह जब आसमान पे गया तो 11 शागिर्द, आप कहेंगे 12 क्यों नहीं? यीशु मसीह जब आसमान पे जाने लगे तो 11 शागिर्द, क्योंकि यहूदा तो मर गया था। 11 शागिर्द और टोटल और ईमानदार मिला के 120 की जमात। यीशु मसीह ने शागिर्दों को कोई जैतून पे बुलाया और उन्हें इरशाद हासिल दिया और कहा, बस तुम जाकर सब लोगों को शागिर्द बनाओ। लेकिन साथ ये कहा, पहले रूह कुद्दुस का इंतजार करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मनादी करो, लेकिन पहले रूह कुद्दुस का इंतजार करो, रूह कुद्दुस के बपतिस्मे का इंतजार करो। यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। तो याद रखें, ये कौन कौन लोग हैं जो यीशु का हुक्म मान के चले गए और रूह कुद्दुस का इंतजार करने लगे। ईमान की किताब पहला बाब उसका नेक्स्ट पहला बाब 13वीं आयत, यानी क्या है? ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम के साथ और आगे यहां लिखे दुआ में शामिल रहे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस वाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और थोमा और बरतुल्माई और मत्ती और हलफई का बेटा याकूब और शमौन जेलोतियस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। 11 लोग का जिक्र है। ये इकट्ठे वाला खाने में चले गए यीशु का हुक्म मान के। जब यीशु ने कहा, फिलिप्पस मेरे पीछे हो गए, फौरन पीछे हो गया। जब यीशु ने कहा, सब लोगों को शागिर्द बनाओ, लेकिन पहले रूह कुद्दुस के लिए ठहर जाओ, ये हुक्म मानकर वाला खाने में चला गया। मुकद्दस मरियम के साथ, शागिर्दों के साथ 120 की जमात होकर ये
और फिलिप्पस 10वें दिन नाज़िल हुआ, सब गैर ज़बानें बोलने लगे। बोले हालेलुया। तो फिलिप्पस उनमें शामिल था। बोले हालेलुया। हिस्ट्री बताती है पहली सदी ईस्वी की जो मसीहियत की जो वो है सन है पहली सदी, उसकी हिस्ट्री कहती है कि फिलिप्पस खिदमत करता करता तुर्की के इलाके में आ गया। तुम कहाँ आया था? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान जो तब नहीं था। ऐसे ही ये शागिर्द फिलिप्पस तुर्की में चला गया और वहां का जो इलाका है जिसका बड़ा मशहूर नाम है फ्रोगिया, वहां पर उसने खिदमत की, बहुत सी कलीसियाएं उसने कायम की और फिर फ्रोगिया में ही कलीसियाएं कायम की, जबरदस्त खिदमत की और वहीं पे शहीद हुआ। शहीद कैसे हुआ? पतरस को कैसे शहीद किया गया? किसी को बताओ, पतरस कैसे शहीद हुआ था? किसी को नहीं पता। उल्टा सलीब दिया गया था, यानी सर नीचे पांव ऊपर। तो ये शख्स फिलिप्पस जो है तुर्की में जब इसको शहीद करने लगे तो इसने कहा मुझे यीशु की मांग सीधा सलीब ना दो, उल्टा सलीब दो, मैं मसीह की खातिर मरने को तैयार हूं, मैं जान देने को वफादार होऊंगा। इसने कलीसियाएं कायम की, मसीह के लिए जान देने तक वफादार रहा और उल्टा सलीब चढ़ा दिया गया फिलिप्पस को फ्रोगिया के इलाके में जो मौजूदा तुर्की है। और प्रकाशवाणी की किताब दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़े, क्या लिखा है? दूसरा बाब 10वीं आयत क्या लिखा है? सब इकट्ठे बोले ऊंची आवाज से 1 2 3। आपको भी जिंदगी का ताज चाहिए तो जान देने का मतलब ये नहीं जब कोई आगे तो आगे चुरी ना सिर काट करे या प्लास्टिक को फूट के आगे मार दे। इसका मतलब है अभी से हर रोज मरने तक वफादार है। बात लोग समझते जान देने तक वफादार का मतलब है कि जब कोई जान निकालने आएगा, जब कोई खंजर मारेगा तब तक जी नहीं। इसका मतलब है जब तक जान है वफादार। लोग मसीह के पास आए, हालात में ना देखें, मसीह में देखें। आज के पैगाम से आपने क्या क्या कुछ सीखा है, ये आपका टेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ आप क्या जवाब देंगे। आर यू रेडी? हेलो, आर यू रेडी? फिलिप्पस की जिंदगी से पहली बात क्या सीखते हैं? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? वेरी गुड। तो जो उसका फिलिप की जिंदगी से इन्होंने कहा कि हम ये सीखते हैं कि हमें मसीह पर इत्मीनान रखना है, ईमान रखना है, हालात में नहीं देखना, हालात कोई भी हो, फैक्ट्स कोई भी हो, यीशु पे नजर रखें। और जो हाँ जी पीछे बताइए मुझे क्या था? वेरी गुड। दूसरे नंबर पे लोगों को मसीह के पास ले जाना है कि आओ चल के देख ले। और फिर अगर थोड़ी बहुत कमी हो कलाम के बारे में, ज्यादा समझ ना हो, तालीम दें, निजात के बारे में बताएं, तौबा की तालीम दें, लेकिन थोड़ी सी अगर कमी हो तो क्या करना है? सही बात। जो सीनियर हो चर्च में किसी की मदद ले, क्योंकि लाना है उसी के पास। और क्या सीखते हैं? जान देर तक वफादार है। उसने सर कटवा दिया, शहीद हो गया, मतलब कि उल्टा सलीब चढ़ गया। और कोई बात? कोई और भी बोले? दो बातें तो बड़ी जरूरी जो छोड़ दी आपने। बोल रहे कुछ खुदावंद पे भरोसा। हाँ जी, पहले बताया जा चुका है, मैं बता दूं दो बातें। जब यीशु बुलाए फौरन के ओके से, यीशु ने कहा फिलिप्पस मेरे पीछे हो ले, वो हो गया। यीशु ने कहा जाके रूस के लिए ठहरो, रूस के लिए ठहर गया। यीशु ने कहा शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाने के लिए चला गया। यीशु ने कहा दुआ में ठहर जाओ, ठहर गया। ओबीडियंस, फर्मा बदलना सीखने। आज के कलाम के विषय से खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।